Hi guys, we'll be talking about calculating the diameter of the tree. This is a very important interview question, and like you can expect this question in a variety of interviews and in various rounds. So, extremely important question. If you have an idea of this question beforehand, it is very good. You can explain it to the interviewer quite easily, and like if you have to develop the approach on that moment, then it might become a little difficult for you. So having a little knowledge about this question, about how to solve this, and what the time complexity is, and can we optimize it, so that is a added advantage to you in the paper. So this comes in like pen paper round as well as in the vocal interviews. So you can expect this question anywhere. So let's start with understanding the question first. So let me draw a tree. So here's the tree, and first of all, we'll understand what diameter of a tree actually means. So diameter is like if we start from one leaf node and end our root to another leaf node. So the number of nodes involved in that traversal would be considered as the diameter. So there will be multiple number of diameters, but we need to find the longest diameter of all these. Fine. So if we look at this tree, then what we can see is if we start from this leaf node. I hope all of you are aware of what leaf node are, who do not have any left or the right child. So the nodes which are leaf nodes are this, this, and this. Right. So we need to calculate the longest diameter. One of the options can be along this path. The other option can be along this path. And then we can have something like this. And there will be other paths as well. So starting from this path, we can move through this path and this path as well. Right. So a bit of confusion. So let's see one by one. If we start from this node and we start calculating, we count one edge here. Then if we go rightwards, then we calculate two edges here. So right now the diameter we calculate is 3 units. So we need to check if this is the largest diameter or not. Then in the next case we can go something like this. Fine. So let's calculate. So one node here, 2, 3, 4, and 5. So now we have a diameter 5. We are looking just from the leaf node to the leaf node. Fine. And then there will be one more path. Let's check that out. So if we start from this node, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the diameter comes out to be 6 in this case. Right. So let's clear this off. We'll check other parts as well. So we have three diameters right now, 3, 5, 6. Fine. And now if we start our path from this leaf node, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 will be the diameter if we consider from here to here. So if we look at the other path, then it would be something like this. Starting from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So in total there are 7 edges between this leaf node to this leaf node. So if we check out all the diameters, the maximum is 7. So hence the longest diameter of this tree, of this given tree, is 7. So we need to strategize our code so that we obtain this answer from our code. So let's start understanding. There are three scenarios that we need to discuss. Just a moment. So we have three cases to calculate the diameter of any tree, the longest diameter. So the first case being
that we have the diameter passing through the root node of the tree. Fine, so let me show you. So we have this root node, and if we see that the longest diameter would be something along this path, so the length of the diameter would be 5 units, and we see that this path can be obtained, this diameter value can be obtained if we travel through the root node of the tree. So this would be considered when the longest root passes through the sorry root passes through the root. So passes through the root. And then we have the second case when either like the left subtree will give you the longest diameter path. In this case, if we think that we'll consider the root node for calculating the longest diameter, then we would be wrong. अगर हम देखें कि अगर हम इसके पाथ के अलॉन्ग जाएं तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5, राइट, तो इसमें 5 आएगी लेंथ. बट अगर हम ये वाला केस देखें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारा मैक्सिमम डायमीटर आएगा. सो इसमें क्या केस है कि लेफ्ट सब ट्री, क्योंकि ये रूट है, उसके लेफ्ट में जो सब ट्री है उसमें से हमारा डायमीटर मैक्सिमम कैलकुलेट हो रहा है. सो द डायमीटर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री. फाइन. एंड देन देयर इज अ केस व्हेन द डायमीटर अकर्स फ्रॉम द राइट सब ट्री. तो इसमें अगर हम देखें, यहाँ से चले हम, तो ये और ये, तो हमारा यहाँ भी 5 मैक्सिमम लेंथ हुआ, राइट. सो इस केस में हमारा हो गया राइट सब ट्री में हमारा डायमीटर मैक्सिमम आ रहा है. सो नाउ व्हाट वी कैन सी दैट हमें ये तीनों चीजें अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, एंड हमें फिर उसका मैक्सिमम निकालना पड़ेगा कि किस चीज से हमारा मैक्सिमम आ रहा है. या तो ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट सब ट्री से हमारा मैक्सिमम आए, या फिर हमारा राइट सब ट्री से मैक्सिमम आए, राइट. और अगर जब हम डायमीटर के थ्रू देखें कि डायमीटर के थ्रू हमारा मैक्सिमम आया, तो उस केस में हम क्या नोटिस करेंगे कि डायमीटर की वैल्यू क्या है. देखो, क्योंकि डायमीटर के लेफ्ट में कितनी नोड्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 3, राइट, एंड राइट में कितना है, 2. तो ये चीज हम अगर देखें तो ये हाइट है, राइट में हाइट कितनी है, 2, एंड लेफ्ट में हाइट कितनी है, 3. तो इन दोनों का एडिशन मतलब 2 + 3, तो हमारा डायमीटर आ जाएगा, राइट. तो एक केस होगा कि लेफ्ट ट्री से मैक्सिमम आ सकता है या राइट सब ट्री से, या फिर हम बता सकते हैं कि लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, तो इससे हमारा डायमीटर आ सकता है. तो इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम डायमीटर कहलाया जाएगा. ठीक है. सो आई होप इतना पार्ट क्लियर होगा. तो एक बार हम ड्राई रन करके देख लेते हैं एक एग्जांपल. सो नाउ वी हैव अ ट्री लाइक, we'll consider the case 1 जब हमारा डायमीटर रूट के अलॉन्ग पास होता है. सो वी हैव अ ट्री लाइक दिस. सो इस केस में क्या होगा, मैंने क्या बोला कि हम हर पॉइंट पे हर नोड पे क्या करेंगे, लेफ्ट डायमीटर कैलकुलेट, पहले लेफ्ट हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, एंड लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर. हमने ये डायमीटर फंक्शन बनाया, लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन, इसी फंक्शन को कॉल करके. तो ये डायमीटर का फंक्शन हम कॉल करेंगे किस पार्ट पे, रूट के लेफ्ट पे, एंड ये मैंने बोला डायमीटर का रिकर्सिव फंक्शन होगा रूट के राइट पे. फाइन. सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सपोज हम फर्स्ट नोड पे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई लेफ्ट से हाइट ले आ, राइट से हाइट ले आ अपनी. तो हमने अभी हाइट कैलकुलेट करनी सीखी थी पिछली कुछ वीडियोस में. सो जैसे हमारे पास सपोज ये ट्री है, ठीक है, राइट साइड नल है हमारा. तो सबसे पहले हम हाइट में क्या करते हैं, सबसे लीफ नोड पे जाते हैं, तो वो पूछता है लेफ्ट की हाइट क्या है, राइट की हाइट क्या है. नल है, दोनों की 0 हाइट है,
ठीक है, तो वो बोलेगा मेरी ऐड कर दो प्लस लेफ्ट या राइट का मैक्सिमम, तो वो 0 है, तो वो हाइट क्या बोलेगा, मेरी हाइट 1 है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये भी सेम चीज होगी, लेफ्ट और राइट नल है, तो वो रिटर्न करेगा 1 मेरी मैक्सिमम हाइट है। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे क्या था, वो बोलता है कि 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट या राइट, है ना, ये हमने सीख चुके हैं हम। तो लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम क्या है, 1, तो ये क्या रिटर्न करेगा कि मेरी हाइट 2 है। ठीक है, हम देख सकते हैं ये हाइट और ये हाइट, सो ये हमारी मैक्सिमम हाइट हो गई। देन उसके बाद राइट साइड पे कॉल होगा, तो ये हाइट 0 रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ नल है। सो अब लेफ्ट साइड से आ रहा था 2 वैल्यू, राइट साइड से आ रही है 0, तो 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 2 और 0 क्या होगा, 0, सॉरी 2, तो हमारी टोटल हाइट हो गई 3। तो इस नोड की हाइट हमारी 3 होगी। तो ऐसे ही हम हर नोड पे उसकी लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि लेफ्ट से कितनी मैक्सिमम हाइट आ रही है, फिर राइट से मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं क्या करना है। सो अब इनिशियली मैंने क्या किया, सो नाउ अब हमारे पास ये ट्री है, एंड इनिशियली हमने ये फंक्शन कॉल किया, रूट के साथ हमने कॉल किया। अब क्या हो रहा है कि हर नोड पे ये ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये अपने लेफ्ट से हाइट मंगाएगा, ठीक है, तो ये नीचे गया, ये नीचे गया, ये नीचे गया, तो रिटर्न करते करते ये अपनी हाइट लेफ्ट हाइट 3 बोलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हाइट की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि ये सबसे नीचे जाएगा तो ये लेफ्ट और राइट 0 हो जाएंगे, एंड देन ये 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0 और 0, तो 0 भेजेगा, तो ये 1 आ जाएगा। फिर क्या होगा, लेफ्ट हमारा 1 है और राइट हमारा 0 है, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये रिटर्न करेगा 2। फिर उसके बाद ये अपने राइट में बोलेगा, तो ये लेफ्ट में 0, राइट में 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0, 1, और मैक्सिमम ऑफ 0 और 0, तो ये 1 रिटर्न करेगा। देन उसके बाद लेफ्ट 2 है, राइट 1 है, तो 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है, तो ये लेफ्ट हाइट इसकी 3 आएगी। ठीक है, ये सबको समझ आ गया होगा। फिर उसके आगे चलते हैं। अब राइट हाइट कैलकुलेट होगी। ठीक है, राइट हाइट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, एंड देन अब क्या होगा, अब लेफ्ट डायमीटर कैलकुलेट होगा। अभी क्योंकि इसे नहीं पता कि ये मैक्सिमम है, मतलब ये रूट से मैक्सिमम जाता है कि नहीं जाता, तो अब क्या होगा, अब ये इस वाली नोड पे आ जाएगा पहले। ठीक है, अभी यहाँ ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ पैरामीटर कैलकुलेट नहीं हुए हैं, एंड ये लेफ्ट पे आ गया। फाइन, अब क्या होगा, अब इस पे कॉल हुआ, अब ये पूछेगा कि भाई मेरी लेफ्ट हाइट क्या है, तो लेफ्ट हाइट क्या होगी, इसकी 2 होगी। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था, क्योंकि इसकी 3 है तो इसकी हाइट 2 है लेफ्ट हाइट। राइट हाइट क्या बोली इसने, 1 बोली। ठीक है, अब ये बोलेगा कि मेरा लेफ्ट डायमीटर बता दो, तो अब क्या होगा, रिकर्सिव कॉल हो जाएगी इस वाले नोड पे। ठीक है, तो अब ये पहला अपनी लेफ्ट हाइट पूछेगा, तो वो बोलेगा इसकी हाइट है 1, तो इसकी हाइट हो जाएगी। सो अब क्या होगा, इसकी लेफ्ट हाइट होगी 1, क्योंकि लेफ्ट से क्या आएगा, 1। ठीक है, तो लेफ्ट हाइट आ गई 1, राइट हाइट क्या है, नल है, तो 0 आ गई। अब क्या बोलेगा, डायमीटर कैलकुलेट कर दो मेरा लेफ्ट का, तो वो नीचे चले जाएगा। अब क्या होगा, इसकी लेफ्ट हाइट क्या होगी, 0, राइट हाइट क्या है, 0। अब इसका डायमीटर कैसे निकालें। ठीक है, तो अब क्योंकि ये नीचे जाएगा इधर, है ना, फाइनली ये नीचे गया, तो अब क्या होगा, ये नल है, तो हम इसमें बेस कंडीशन क्या लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं थोड़ा नीचे, कि अगर रूट हमारा नल है तो हमारा डायमीटर 0 रिटर्न करना है, तो रिटर्न किया मैंने 0। तो इस केस में क्योंकि नल है तो ये डायमीटर लेफ्ट वाला 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये कैलकुलेट होके 0 आ जाएगा, एंड राइट डायमीटर को कैलकुलेट करेगा, तो क्या होगा उस केस में, ये भी 0 रिटर्न कर देगा क्योंकि नल है। तो ये सारे पैरामीटर 0 आ गए। तो अब हमें डायमीटर एक्चुअली कैलकुलेट करना कैसे है, मतलब जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, डाया लिख लेते हैं हम उसे। अब देखो इसका एक्चुअल में डायमीटर क्या है, मतलब इसके नीचे तो कोई नोड है ही नहीं ना, तो मतलब इसका डायमीटर अकेली एक नोड का डायमीटर क्या है, 0 है। तो एक्चुअल में हम अगर ये जो मैंने पहले बताया
कि हम लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट का एडिशन कर दें, उसका मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट डायमीटर या राइट डायमीटर, है ना। तो अगर ये कर दे, इन सब का मैक्सिमम ले ले, इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का सेपरेटली जो भी मैक्सिमम है वो, और उसका भी मैक्सिमम इन दोनों से कर दे, लेफ्ट प्लस राइट हाइट का, सही है। तो वो चीज हमारी डायमीटर हो जाएगी। तो इस केस में क्या है, सारी चीजें जीरो है, तो इससे क्या आएगा, डायमीटर जीरो रिटर्न होगा, सही है। तो क्या हुआ, इसमें जब इसने पूछा कि मेरा लेफ्ट डायमीटर क्या है, तो उसने कहा जीरो है, सही बात है। अब ये पूछेगा राइट का डायमीटर क्या है, तो वो कहेगा जीरो है। बट अब इस नोड पे इस फंक्शन से कैलकुलेट होगी वैल्यू, तो लेफ्ट हाइट क्या है, वन है ना, तो वन कर दिया, प्लस राइट हाइट क्या है, जीरो है, तो जीरो कर दिया। इन दोनों का एडिशन या फिर मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट, लेफ्ट डायमीटर, वो क्या है, जीरो है। राइट डायमीटर क्या है, जीरो है, तो इसका इन सब का मैक्सिमम क्या हुआ, वन हुआ, है ना। तो आंसर आया वन। तो मतलब इसका मैक्सिमम डायमीटर हम जैसे कि देख सकते हैं कि एक नोड है हमारे इन दोनों के बीच में, मतलब एक एज है, तो इसका डायमीटर क्या हुआ, वन, सही है। तो इसने अपने अपने से पूछा था इधर से लेफ्ट से कि भाई मेरा डायमीटर बता दे, तो इसने भेजा वन, ठीक है। अब सिमिलरली ये राइट से पूछेगा कि डायमीटर बता दे, तो डायमीटर कैलकुलेट करने से पहले वो अपनी लेफ्ट हाइट पूछेगा जो कि जीरो है क्योंकि नल है, राइट हाइट पूछेगा वो भी नल है, फिर लेफ्ट डायमीटर पूछेगा, तो जब लेफ्ट जाएगा तो वो नल है तो जीरो रिटर्न करेगा। ऐसे ही राइट डायमीटर में भी जीरो है तो वो जीरो रिटर्न करेगा। तो जीरो प्लस जीरो का जीरो होएगा, और फिर लेफ्ट डायमीटर जीरो है, राइट डायमीटर जीरो है, ठीक है। तो ये सब कुछ वैल्यू रिटर्न करके जीरो करेगा, तो बोलेगा भाई मेरा राइट डायमीटर तो जीरो है। तो अब इस नोड पे क्या कंप्यूटेशन होगी, लेफ्ट इसका लेफ्ट हाइट टू है, राइट हाइट वन है, तो वन प्लस टू हो जाएगा। और लेफ्ट डायमीटर कितना है, वन है, राइट डायमीटर क्या है, जीरो है। ये सब हमने इस कोड से कैलकुलेट किया है, और अब हम ये कंप्यूटेशन कर रहे हैं इस वैल्यू, इस फंक्शन, इस एक्सप्रेशन से। सो अब क्या आया, डायमीटर की वैल्यू थ्री, इसका मैक्सिमम या वन का मैक्सिमम, थ्री वन और जीरो का मैक्सिमम, तो वो क्या होगा, थ्री, सही है। तो मतलब वो बोलेगा कि मेरा लेफ्ट में डायमीटर थ्री है, सही है। वो कैसे आया देखते हैं, इस वाले नोड के अलावा देख सकते हैं हम, ये वाला हमारा मैक्सिमम डायमीटर इस सब ट्री के लिए भेज रहा है। तो आगे चलते हैं इसके आगे। अब ये कैलकुलेट करने आएगा राइट साइड में कि भाई मेरा डायमीटर बता दो राइट साइड का। अब क्या होगा, इस नोड पे लेफ्ट हाइट कैलकुलेट होगी जो कि जीरो है, राइट हाइट कैलकुलेट होने जाएगा, राइट हाइट कैलकुलेट होने जाएगा, तो वो बोल देगा कि वन है हाइट, है ना, क्योंकि एक नोड है राइट में। फिर वो बोलेगा कि भाई राइट का डायमीटर, लेफ्ट का डायमीटर बता दे, जो कि नल है तो जीरो आ जाएगा। राइट में पूछेगा कि भाई डायमीटर बता दे, तो इस नोड पे आएगा। अब ये बोलेगा कि मेरी लेफ्ट हाइट क्या है, तो वो क्या है, जीरो। राइट हाइट क्या है, वो भी है जीरो। पूछेगा लेफ्ट का डायमीटर क्या है, क्योंकि वो नल है, ये कंडीशन एनकाउंटर होगी तो रिटर्न करेगा जीरो। राइट हाइट क्या है, जीरो, सब कुछ जीरो। तो सबका मैक्सिमम अगर एडिशन भी कर दें इन दोनों चीजों की तो जीरो आएगा, तो ये रिटर्न कर देगा जीरो। सही किया हमने। सो इतना सबको समझ आया होगा। तो अब क्या होगा, ये रिटर्न करेगा वन, मतलब जीरो, सॉरी, है ना, कि मतलब मेरा लेफ्ट डायमीटर भी क्योंकि सिंगल नोड है तो जीरो है, राइट डायमीटर भी जीरो है, और इनकी खुद की लेफ्ट और राइट हाइट भी जीरो है, तो वो रिटर्न कर देगा जीरो। अब आएगा इसका, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये जीरो और जीरो है दोनों, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, वन होगा, तो ये आया मैक्सिमम इधर। अब इस नोड की कंप्यूटेशन होगी एक्चुअल में। सो अब क्या होगा देखते हैं। तो हमारा आया थ्री प्लस टू, है ना, और लेफ्ट डायमीटर कितना है, थ्री, राइट डायमीटर क्या है, वन। तो इन सब का लाइक मैक्सिमम लेंगे, तो क्या आएगा, मैक्सिमम फाइव, जो कि हम किस पाथ के अलोंग देख सकते हैं, इस पाथ के अलोंग, है ना। तो ये हमारा मैक्सिमम डायमीटर कैलकुलेट हो गया। सो इसका कोड देखेंगे हम।
आई होप ये सबको समझ आया होगा।